कृष्णार्पण सकल इष्ट कष्ट सुख भोग जीवनाचे सर्वै 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 कृष्णार्पण सर्वै 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 कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण सकल इष्ट कष्ट सुख भोग जीवनाचे सर्वै 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 कृष्णार्पण सर्वै 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 कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण कृष्णार्पण सर्वै कृष्णार्पण बलदित्तलो तोची छलदित्तलो तोची बलदित्तलो तोची छलदित्तलो तोची अचल भक्ति दीनु फलदित्तलो तोची अचल भक्ति दीनु फलदित्तलो तोची फलदित्तलो तोची 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 छलदित्तलो तोची 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 फलदित्तलो तोची छलदित्तलो तोची अचल भक्ति दीनु सन्मति दित्तलो सदै सद्गति दित्तलो तोची सन्मति दित्तलो सदै सद्गति दित्तलो तोची देव पार्थ सारथी जीवात्माचो श्रीसंयमेन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनो बिर्वेशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संस्थान के आराध्य देवता व्यास रघुपति नरसिंह देवर को प्रणाम करके हमारा काशी मठाधिपति श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामी जी चरण कमल के नमस्कार करके आज ISBM सारस्वत कमेटी से उसका अध्यक्ष और पदाधिकारी आए, CP दोषी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो भी आए, हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी आए। सभी को प्रणाम करके ये दो शब्द स्वागत करने के लिए मैं इधर है। वी आर वेरी हैप्पी दैट ISBM has initiated this a mission to empower Saraswat youth for civil services excellence. We Saraswats are on the top in everything except for the civil services. Of course, there are few Saraswats who are in the civil services of the central government as well as the state government. In the month of December, our Swamiji has inaugurated the Saraswat Sammellan at Jodhpur. When our Swamiji was very specific that our younger generation should be trained in UPSC sector, because very few number of Saraswati you will get in civil services departments in the government. In fact, our Swamiji said that because Swamiji has founded one Vishwa Saraswat Federation in the year 2000, where the motive was to encourage, mentor and motivate our Saraswat students so that they can excel in their life and they can bring name for the Saraswat community as a whole. We have made many achievements in the medical sector, engineering sector, professional sector, legal sector, chartered accountancy, accounting sector and everything. But in UPSC, our numbers are very limited considerably when compared to these professionals. In fact, our Swamiji, through Vishwa Saraswat Federation, had sponsored 5 students, meritorious, economically backward students who wants to pursue this UPSC examination. They will be sponsored in a year. 5 students will be sponsored in a year. This was the announcement made in the Saraswat Sammellan at Jodhpur. In fact, our Swamiji was very keen that we should start this initiative at Mangalore and Udupi districts also. But it was very difficult because we could not meet the number of students also. We are short of faculties also because most of the students, वो तो दिल्ली आएगा नहीं तो बैंगलोर जाएगा, because the culture of UPSC is more in North India rather than in South India. But Swamiji has taken this initiative in the Kerala. Vijay Sri, one initiative Swamiji has already started. 2 batches are over. And we hope in the years to come, many more students get enrolled for this UPSC training. And in the years to come, that we can see that Saraswat community will be at the helm of, because this bureaucracy, they will be on the top position representing our community in all the departments of the government. Surely with the blessing of our Lord Vedvyas and Narasimha, plus with the blessing of our Parama Puja Swamiji, our initiative will be a very successful, very, very successful initiative, and many more students will join this initiative, this mission, and they will bring a good name for the Saraswati community as a whole. On behalf of Saraswati Sanskriti committee here, I invite all the people who have gathered here, because as a Saraswat, we all should get united, so we should become strong, unlike other communities. One day we should prove that the Saraswati community is the best community in the world, not in India, it is in the world. With these few words, because Swamiji told me to speak in Hindi, but Hindi is a little, no, it's an easy language for what from us, from South Canada, in Karnataka, South India, it is little difficult.
but still I feel that if any mistakes are there, Swamiji will pardon us, pardon me, and you also will bear with me, and we will continue this program. Thank you. धन्यवाद जगन्नाथ जी। भगवान श्री वेद व्यास जी के चरणों में वंदन, भगवान श्री नरसिंह जी के चरणों में वंदन, कृष्ण भगवान के चरणों में वंदन, परम पूज्य काशी मठ संस्थान के पीठाधीश्वर श्रीमद् सम्यमिंद्र तीर्थ स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन। हम सभी आज इस सारस्वत संस्कृति केंद्र के पावन धरा पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हम यहाँ आज स्वामी जी के आशीर्वाद से उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सीपी जोशी साहब उपस्थित है, वरिष्ठ आईएएस आदरणीय अविनाश जोशी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व महापौर हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय घनश्याम ओझा साहब, इस सारस्वत संस्कृति के सभी वरिष्ठ जन, दिल्ली सारस्वत समाज के वरिष्ठ जन और सभी महानुभाव, मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में, हालांकि जगन्नाथ जी ने पूरी बता दी है, विजयी भव करके जो स्वामी जी ने कार्यक्रम प्रारंभ किया था उसी के रूप को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। उसके बाद आदरणीय घनश्याम ओझा साहब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आदरणीय घनश्याम ओझा साहब से निवेदन करूंगा कि वे स्वामी जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब शॉल पहनाएंगे और श्री अविनाश जी जोशी जी स्वामी जी को शॉल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दिल्ली सारस्वत समाज से पधारे हुए भी पदाधिकारी स्वामी जी को शॉल भेंट कर सकते हैं। संयमेन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संसौमि। पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां। दोष विवर्जित व्यास चरणातु दोष विवर्जित व्यास चरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया। पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां। पारु हे भव सागर करता कौन पारु हे भव। जी के चरणों में वंदन करते हुए आज का ये जो दिन है, मैं समझता हूँ कि एक महान कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये सारस्वत समाज के भविष्य को नई दिशा देने वाले एक ऐतिहासिक अभियान का शुभारंभ है। परम सौभाग्य है कि हम सभी पावन आध्यात्मिक धरा पर परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसके भवनों, संसाधनों और आर्थिक संपन्नता के साथ ही उसकी शिक्षित और संस्कारित राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित युवा पीढ़ी में भी होती है। जब समाज के प्रतिभाशाली युवा देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचते हैं, तब केवल उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज गौरवान्वित होता है। पिछले 5 वर्षों से आदरणीय घनश्याम ओझा जी और समाज के सभी वरिष्ठ जन अनेक मीटिंगों, कार्यक्रमों में, अनेक यात्राओं में इस प्रकार के चिंतित होते थे कि समाज के
युवा कम से कम प्रतिवर्ष समाज के 10 युवा उच्च नौकरियों में जाएं, आईएएस आईपीएस बने, ये उनका सपना था। इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा था। लगभग 3 वर्ष पूर्व भी जोधपुर में इसी तरह के कार्यक्रम शुरू हुए थे। पिछले दिसंबर में जब अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसमें हम सभी ने संकल्प लिया था, आदरणीय सीपी जोशी साहब, आदरणीय अविनाश जोशी जी और सभी मिलकर एक बड़ा संकल्प लिया था कि हम सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे, और वो आज सपना सच होने जा रहा है। आदरणीय स्वामी जी के कमलों से उस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है, और हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज इस ऐतिहासिक घड़ी में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय घनश्याम ओझा जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके बारे में संक्षेप में जानकारी दें और स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री घनश्याम जी ओझा साहब। सारस्वत संस्कृति केंद्र के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के चित्तौड़ के सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, यहाँ दिल्ली में भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग में सचिव अविनाश जोशी जी, राजस्थान और दिल्ली के हमारे सारस्वत बंधु, श्रद्धाओं की माता शक्ति, स्वामी जी आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से हम लोगों ने जोधपुर में एक कार्यक्रम, जिसकी कल्पना में भी नहीं थी, ये कार्यक्रम इस प्रकार से भव्य रूप लेगा और पूरे भारतवर्ष के हर कोने से, हर प्रदेश से, हर जिले से सारस्वत बंधु उसमें शिरकत करेंगे और एक मंथन करेंगे, और मंथन करने के बाद में जो नवनीत निकलेगा, उस नवनीत का फ़ायदा पूरे सारस्वत समाज को मिलेगा। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा, और उस कार्यक्रम में जो चर्चाएं हुई, आपने भी अपने उद्बोधन में इसको और इंगित किया था कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान दिशाहीन हो रहे हैं, उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, और वो एक इस प्रकार का माहौल उनको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो एक टैलेंट है उनके पास में, लेकिन उनके पास में सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है, जिससे वो अपने टैलेंट का उपयोग करके एक अच्छी प्रतिभा निखर के आ सके और समाज के लिए कुछ कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दिल्ली में एक बैठक यहाँ की थी, जिसमें अविनाश जोशी जी और भाई संजीव कबीर, वो जहाँ पीछे विराजमान है वो, और कुछ और लोग हमारे प्रमुख लोग थे। उसके बाद में राजस्थान जोधपुर में हमने 3-4 मीटिंग करने के बाद में ये तय किया कि जो हमने कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में बहुत हम लोगों ने मितव्यता से काम किया, बहुत कम खर्चे में काम करने की कोशिश की, और जो पैसा फंड हमारे पास बचा, जो हमारी सेविंग हुई, लगभग उस कार्यक्रम में ऐसे लोगों ने बहुत अनुमान लगा रखे थे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया होगा, बहुत ज़्यादा पैसा इनकम किया होगा। लेकिन मैं आज, चूँकि आपकी प्रेजेंस में सब लोग बैठे हैं, उस कार्यक्रम में हम लोगों ने करीब 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था। 2 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया था। उसमें से 1 करोड़ 30 लाख रुपये हम लोगों ने उसमें एक्सपेंस किया, खर्च किया। 2 करोड़ इकट्ठा किया हम लोगों ने, और 1 करोड़ 30 लाख हमने खर्च किया। लोगों का उसमें कई लोगों की था कि इस कार्यक्रम में 5 करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन सबने बहुत सहयोग किया, और बहुत मिनिमम खर्चे में हमारा कार्यक्रम हो गया था, और उसमें 70 लाख लोगों की हमको सेविंग हुई। उस फंड से इस कार्यक्रम में हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग जो पैसा समाज का है, पैसा हमारा नहीं है, हम तो उसका ट्रस्टी है। पैसा देने वाले ये लोग बैठे हैं, समाज ने पैसा दिया, तो जो पैसा सेविंग है वो समाज की है, हम लोग ट्रस्टी है उस पैसे के। तो जो भी हम लोग आना जाना करते हैं वो भी हमारे खुद के पैसे से करते हैं, उसमें से पैसा हम ट्रस्ट नहीं करते हम लोग, तो वो पैसा हमारे पास में। उसके बाद जैसे जरूरत होगी हम समाज के पास और जाएंगे, आप आशीर्वाद देंगे, तो मैं समझता हूँ कि समाज में पैसे की कोई कमी नहीं है। समाज पैसा दिल खोल के देता है अगर अच्छे काम हो तो। इसी को ध्यान में रखते हमारे भाई संजीव कबीर यहाँ काम कर रहे हैं।
इनके सलाह करके हम लोग यहाँ आज आपके कर कमलों से, आपकी ब्लेसिंग से जो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, इसकी फॉर्म लॉन्च करेंगे हम लोग। और इस बार जो हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि अभी अगले महीने में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस अगस्त के बाद में तो नया बैच जिसके एग्ज़ाम मई 2027 से होने वाले हैं, उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे मई 2027 की। उसमें हम लोगों ने सलाह करने के बाद में कुछ क्राइटेरिया तय किया है। जिन लोगों ने प्री क्लियर करके कर लिया लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए, वो बिना किसी इंटरव्यू के हमारे लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ के डॉक्टर, वो भी हमारे लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा एक दो कैटेगरी हमने और रखी है। उसके अलावा जितने भी लोग इसमें आना चाहेंगे, एक हमने टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के नाम एक वेबसाइट तैयार की हम लोगों ने, उसके माध्यम से हम उनके एग्ज़ाम लेंगे और जो बच्चे लगेगा भी क्वालिफाई करेंगे और उनके इसमें टैलेंट है, उनको सिलेक्ट करेंगे। जितना खर्चा दिल्ली में आएगा कोचिंग का और उनका रहने का, खाने का, उसका 75% हम लोग बेयर करेंगे। 25% पैसा खुद को देना पड़ेगा। जब तक पैसा खुद का नहीं लगता है तब तक उसको थोड़ा उसमें बस दर्द नहीं होता है। तो हम लोग तय किया 25% जो जितना खर्चा आएगा, हम लोग करीब एस्टिमेट लगा एक कैंडिडेट के ऊपर कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा आने वाला है। उस 4 लाख में से 1 लाख रुपया वो खुद बेयर करे और 3 लाख रुपया हमारा जो ISBM का जो हमारा एक जो सिविल आज हम लॉन्च कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज मिशन, ये मिशन उसका पेमेंट वो करेगा। उसमें हम लोग कुछ लोगों ने हमने उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन किए हैं कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे और उन बच्चों को क्या क्या फॉलो करना होगा। जो भी जिस सिटी से जो आया कैंडिडेट आएगा, उस सिटी के 2 मौजूद लोग, 2 अच्छे लोग उसको कंफर्म करेंगे, एक इंडोर्स करेंगे कि ये बच्चा हमारे समाज का है और इसको इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हर कोई कैसे आ गए तो पैसा वो उतर आ गया तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। उस सिटी के 2 मौजूद लोग, 2 अच्छे लोग उसको इंडोर्स करेंगे कि भी ये बच्चा हमारे समाज का है और इसकी आवश्यकता है। उसको हम लोग इंटरटेन करेंगे, उसको ट्रेनिंग दिलाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके ब्लेसिंग से हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। अभी यह हमारे दिल्ली के बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने आके एक बहुत जोशी जी है, चूँकि राजनेता है, तो जब राजनेता मिलता है तो लोगों की डिमांड हो जाती है सीधी। तो आते भाई बोलने लगे, साहब ऐसा ज़मीन लेनी है हमको, एक भवन बनाओ, उसमें हम क्लास चलाएँगे, उसके बाद अगला स्टेप लेंगे। तो हमने टारगेट लिया, बहुत बड़ा टारगेट नहीं हमारा, बहुत छोटा टारगेट हमारा। हम लोग अभी 1-2 वर्ष अगर 5 से 10 बच्चे IAS, IPS, IRS इस कैटेगरी में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें कोई ऐसा नहीं कि हम 50 चाहिए या 100 चाहिए, हम उसके पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग केवल हमारा लक्ष्य मिनिमम 5 और उसके मैक्सिमम कितने में हो जाए। तो अगर 5 भी कर पाए हम लोग, अगर आपकी ब्लेसिंग मिली, आपकी ब्लेसिंग रही, तो निश्चित रूप से समाज सहयोग करेगा, तो हम लोग इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए, बाकी सब समाज करने वाला है, समाज करेगा, तो आपकी ब्लेसिंग से हम सब ये कर पाएंगे। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और मैं कोशिश मेरी रहेगी उम्मीद कि आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमको मिलती रहे। आपके श्री चरणों में प्रणाम। Swamiji has blessed us, saying that the 5 brilliant students, economically backward, we have some rooms here in the first floor. 5 बच्चे लोग को इधर स्टे अरेंजमेंट और फूड अरेंजमेंट स्वामी जी ऐसे आशीर्वाद से हमारा सांस्कृतिक सारस्वत सांस्कृतिक कमेटी ये जवाबदारी ले सकते हैं। ये अनाउंसमेंट स्वामी जी ने करने के लिए कहा है, उसको कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, थोड़ा प्रोग्राम तो नीचे हॉल में होता है। दिस इज सेंट्रल प्लेस, ऑलमोस्ट सेंट्रल। देखिए, कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है और स्वामी जी का ब्लेसिंग मिलती है और वो भी सकारात्मक रूप से, तो मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम 100% सफल होगा। आप सभी की तालियों के बीच में इस बात के लिए स्वामी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि 5 छात्रों को स्वामी जी की ओर से उन्हें निःशुल्क रहने की व्यवस्था यहाँ करेंगे। और करोल बाग में भी एक आपका है, जहाँ भी व्यवस्था बैठेंगे यहीं पर करोल बाग के पास में यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। मैं हमारे बीच में उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत और लगातार 3 बार
सांसद चुने गए, मैं समझ चाहता हूँ। जरूर ये पावन धरा है और निश्चित तौर से आध्यात्मिकता के साथ में उनके शैक्षणिक उन्नति भी होती है, ये साबित है। मैं हमारे बीच में उपस्थित फूड और प्रोसेसिंग विभाग के सचिव महोदय श्री अविनाश जी जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी को संबोधित करें और आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करें। आदरणीय स्वामी जी और सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सांसद श्री जोशी जी और घनश्याम ओझा जी, आज मुझे लगता है एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बहुत बार हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, उत्साह में बहुत सारा अनाउंसमेंट होता है और जब हम लोग उसका एक लेखा जोखा लेते हैं तब मालूम चलता है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं। तो मैं खास करके घनश्याम जी ओझा जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही उत्साह से, एक स्पिरिट से इस काम को उठाया है और मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में 5 नहीं बल्कि हम उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज में इस माध्यम से ले जा पाएंगे। स्वामी जी ने भी जो आज जो यहाँ पे वो एक बात कही है कि 5 बच्चे यहाँ रहेंगे, ये बहुत ही पवित्र जगह है। जब मैं आज यहाँ आ रहा था तो मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स का फीलिंग आया और मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी जगह है ये, और यहाँ से अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि ये जो हमारा एक संकल्प है इसको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि तक पहुँचा पाएंगे। आज स्वामी जी का और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे। मेरी तरफ से जो कुछ हो सकेगा, जो कुछ गाइडेंस या मोटिवेशन, वो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। और हमारे टाइम में तो मतलब एक बहुत ही परिस्थिति विपरीत हुआ करती थी। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मैं सर तब सूरत में था स्वामी जी, और सूरत में आप जानते हैं सिविल सर्विसेज का कोई माहौल नहीं है। माहौल जो बोलते हैं करोल बाग में या राजेंद्र नगर में जो होता है तो मुझे याद है कि जवाहर ये JNU में एक जवाहर बुक स्टोर होता था, तो वहाँ पे हमको किताब लेने आना पड़ता था। गुजरात में किताब भी नहीं मिलती थी। और वहाँ पे एक बच्चा था, जो बच्चा तो क्या था, जो लड़का था वो गाइड करता था कि सर ये किताब लीजिए, ये आपको काम आएगी। तो उस टाइम से हम लोग आज के टाइम में आए हैं जब सारी चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे सारस्वत समाज के बच्चे जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो यहाँ से हम बहुत दूर जाएंगे। स्वामी जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस पूरे मिशन में अविनाश जी का पूरा सहयोग रहा है, उनके गाइडेंस में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं आदरणीय CP जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी को मार्गदर्शन करें। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आदरणीय अविनाश जोशी जी, आदरणीय घनश्याम ओझा जी, समाज के दिल्ली और राजस्थान के सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति युवा साथियों, आज का दिन मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि अभी तक जो कार्यक्रम किए वो वर्तमान के लिए किए, आज ये जो नींव डाल रहे हैं भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये मैं सोच सकता हूँ कि जब संतों का आशीर्वाद हो, बहुत अच्छी गाइडेंस हो। जब जोधपुर में एक प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जोधपुर की धरा पर होगा। आदरणीय गुरुदेव और पूज्य आपके गुरुदेव ने जो एक सपना संजोया था कि पूरे देश भर में कैसे किस प्रकार से जिस समाज ने संस्कृति, सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए, संस्कारों के लिए, शिक्षा में जो कहीं कहीं अग्रिम पंक्ति में आता है, आज उस समाज को एकत्र करके मैं आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे देश भर को, एक महाकुंभ तो आपने किया, लेकिन उसके बाद कैसे हम समाज के बच्चों को सिविल सर्विसेज में और अन्य क्षेत्रों में आगे लाने के लिए क्या कर सकते हैं। और संतों का आशीर्वाद हमने तो दिल्ली में 12 सालों से है,
लेकिन सारस्वत संस्कृति भवन हमने आज देखा है और गुरुदेव के दर्शन भी किए हैं। ये दिल्ली का हृदय स्थल है और वहाँ इतना बड़ा भवन समाज और आध्यात्म और संस्कृति की सेवा के लिए है। मैं सोचता हूँ जहाँ से आज इस पुनीत कार्य की शुरुआत हो रही है और गुरुदेव ने उस कार्यक्रम में पहली आहुति दी है, तो मैं सोचता हूँ आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, सफल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हम सब लोग आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब के साथ, आदरणीय जोशी जी, गुरुदेव का आशीर्वाद तो यही है, कैसे और इस दिशा में आगे बढ़कर। कई बार होता है, हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे मुगलों से, तो संकट आ गया तो भामाशाह आगे आके खड़े हो गए। भामाशाह ऐसे ही आगे नहीं आए, उन्होंने कैरेक्टर देखा कि आगे कौन लड़ने वाला है। तो यहाँ भी कैरेक्टर हमारे सामने अच्छा है, आदरणीय घनश्याम जी ओझा जी, जो बहुत संजीदगी से, ईमानदारी से और सेवा भाव से जिस काम को बेड़ा उठाते हैं, तो वहाँ संतों का भी आशीर्वाद मिल जाता है और वो बेड़ा पार हो जाता है। तो हम सब लोग मिलकर आपके सानिध्य में इस काम में हमेशा लगेंगे। और जोशी जी यहाँ हैं, इनकी अनुभव का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मैं पुनः स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, ऐसे ही आप समय देते रहें तो ये समाज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। आपका पुनः हृदय की गहराई से आभार, आपके चरणों में पुनः वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज का, हाँ एक मिनट, सिविल सर्विसेज का क्या महत्व होता है। मैंने जब आदरणीय सीपी जोशी साहब से निवेदन किया माइक के लिए, तब आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब ने कहा कि पहले हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर साहब को उन्हें बुलाया जाए। तो ये समाज में ये वास्तविकता है कि राजनीतिक से पद से भी बड़ा आईएएस होते हैं। तो हम सभी को इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मैं हमारे जोधपुर टीम से आए हुए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार और हमारे युवा साथी रामदेव जी ओझा साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच तक आएँ। हमारे जोधपुर के युवा पार्षद मोहित ओझा और हमारे साथ आए हुए गणितज्ञ ब्रिजेश जी शर्मा और साथ में हमारे बैठे हुए आंचल जी बोरा और संजय कबीर जी, आप भी पधारें और स्वामी जी के आप सभी भी यहाँ उपस्थित रहें। और वो उस जो हमारा फॉरम है, जो आईएएस मिशन का, जो सिविल सर्विसेज मिशन का फॉरम है, उसे आज लॉन्च कर रहे हैं आप सभी की उपस्थिति में। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वे आप मंच तक पधारें। गुरु तो उदारू करुणा सागर, 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया, पाहि परि पाहि मां। तन मन धन गुरु चरण अर्पण, तन मन धन गुरु चरण अर्पण, जन्म जन्माचे संचित पाप हरण, 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया, पाहि परि पाहि मां। स्वामी जी, सीपी जोशी साहब, हमारे श्रद्धेय घनश्याम ओझा जी, अविनाश जोशी जी एवं सारस्वत परिवार के समस्त सदस्य, आज इस शुभ अवसर पर हम लोगों को घनश्याम ओझा जी ने
यहाँ पर बुला करके हमारे एक पुनीत कार्य, जैसे अभी जोशी साहब कह रहे थे कि सारस्वत संस्कृति केंद्र होते हुए हम भी आज पहली बार यहाँ पर इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिला, तो उसके लिए घनश्याम ओझा जी, कैलाश जी ये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और हमारे को ये शुभ अवसर प्रदान किया, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और इस पुनीत कार्य के लिए जो इंद्रप्रस्थ सारस्वत समाज की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो भी आप आदेश देंगे, घनश्याम ओझा जी, कैलाश जी, जो भी आप आदेश देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता इंद्रप्रस्थ सारस्वत ब्राह्मण समाज के आपको सहयोग, क्योंकि आप जोधपुर में रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी सुविधा, जो भी हमें आप ड्यूटी देंगे, उसको पूर्ण रूप से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही मैं इंद्रप्रस्थ सारस्वत समाज का अध्यक्ष होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये भी कहता हूँ कि जैसा स्वामी जी ने कहा है, जो भी छात्र होंगे हर वर्ष 5 छात्रों का जो खर्चा होगा वो इंद्रप्रस्थ सारस्वत समाज आपको पूरा सहयोग देगा। और इसके लिए मैं इस अवसर पर आपने हम लोगों को याद किया, स्वामी जी के दर्शन किए, आशीर्वाद मिला। और जैसे पुनीत कार्य को करने के लिए संतों से जब आशीर्वाद मिलता है तो उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलती है। तो ईश्वर से हम कामना करते हैं कि अग्रसर जो हमारा सारस्वत समाज है वो आगे प्रगति के पथ पर अग्रसरित हो रहे और आगे आने वाला जो हमारी पीढ़ी है वो इस आशीर्वाद को लेते हुए आगे बढ़ सके और हमारे सारस्वत समाज को आगे बढ़ा सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से स्वामी जी का आशीर्वाद मिला हम सबको और घनश्याम जी को और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम से भगवान का स्मरण करते, हमारा वैसा ही हमारा गुरु का स्मरण करते यहाँ मिलने वाले को शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भारत का राजधानी है। राजधानी मतलब क्या है? मलयालम में बोलते हैं तलस्थानम। तलस्थानम मतलब तला मतलब हेड, उनका स्थान है। हमारा एक आदमी का प्रधान एक पात्र कहाँ है? हेड, सिर। हमको कुछ भी होना है, जाना है, वो सिर से ही जाता है। एक आदमी का सिर स्तब्ध हुआ, कुछ नहीं और कर सकते। सभी कंट्रोल सिर से ही चलते हैं। वैसे ही भारत का राजधानी तलस्थानम ये है। यहाँ से कुछ भी होता है, यहाँ से क्या आज्ञा होता है, वो आज्ञा ही सभी जगह में भारत के ये वो तो कोई भी माना उत्तराखंड के लास्ट गांव है या आपको कन्याकुमारी या और कुछ भी गांव है, वहाँ तक यहाँ का आज्ञा से होता है। वैसा राजधानी है। वैसा ही है हमारा देश में कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स क्या बोलते हैं करते हैं वही चलते हैं। हम देख रहे होंगे कोई भी हम ये क्या सिग्नेचर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अन्य देश से हो या कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, एमपी नहीं करते, एमएलए नहीं करते, करते हैं कौन? ब्यूरोक्रेट्स। वो तो आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईएफएस होगा, कोई भी होगा, करते हैं वो लोग। क्यों? 5 साल तक है सरकार का टाइम। जनादेश 5 साल तक ही रहेंगे। उसके बाद आदमी डेमोक्रेसी है। आदमी लोग क्या बोलते हैं, क्या वोट करते हैं, उनके अनुसार वो सरकार बनाएंगे। बदल हो सकता है किंतु कोई भी ब्यूरोक्रेट्स उनका 60 साल तक बदल नहीं सकता।
करता है कौन? ब्यूरोक्रेट्स। हमारा समाज में भी, सारस्वत समाज में भी ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए। किसी के लिए हमारा उद्देश्य दूसरे समाज के अन्यथाकरण नहीं है, किंतु हमारा समाज में ऐसा आदमी है, ऐसे बोलने में हमको गर्व होना चाहिए। गर्व होने के लिए वो बोलना है। अभी बोलेंगे तो भारत क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते, एक उदाहरण देंगे तो कौन खेलते हैं? 11 आदमी, किंतु क्या बोलते हैं? भारत ने वर्ल्ड कप जीता। या एक आदमी ओलंपिक्स में खेलते हैं, उनको एक प्राइज मिला, किंतु क्या? भारत ने एक स्वर्ण पदक ले लिया। क्यों खेलता है वो? किंतु संपूर्ण भारत को वो गर्व है। वैसा ही सारस्वत समाज को भी ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए। इसी वजह से हम आज जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं? सारस्वत भवन। इसका नाम ही सारस्वत भवन है। क्यों इसका नाम सारस्वत भवन बना दिया, नाम दिया? हमारा स्वामी जी ने, हमारा स्वामी जी ने इस भवन को ही सारस्वत भवन बना दिया। क्यों? ये भारत का राजधानी है। हमारा स्वामी जी, हम भी सभी जगह में जाते रहते हैं, स्वामी जी के मन में ऐसा आशय याद गया, सभी सारस्वतों का एकीकरण करना है, भारत में नहीं विश्व में। इसी दृष्टिकोण से हमारा स्वामी जी ने विश्व सारस्वत फेडरेशन बना दिया, उसका हेड ऑफिस यहाँ ही बना दिया। ये भारत का राजधानी है। हम सभी, हमारा समाज में क्या बोलते हैं? एक मंदिर बना दिया तो कृष्ण मंदिर, बालाजी मंदिर। हम तो वेंकटरमन बोलते हैं बालाजी, किंतु बालाजी, आप तो राजस्थान में जाएंगे तो बालाजी अलग है। हम तो पहले जयपुर से जा रहे थे, सभी जगह में बालाजी मंदिर। अब वो तो आशीष थे, वो हमारा समाज का ही है। हमने उनसे पूछा, ये यहाँ कहाँ से पूरा वेंकटरमन? वो नहीं स्वामी जी, ये बालाजी हनुमान है। बाल का जी, बालाजी। बाल है ना, इसीलिए उनको बालाजी बोलते हैं। हमारा वेंकटरमन है। ऐसा वेंकटरमन मंदिर, राम मंदिर ऐसा बोलते हैं, किंतु हमारा स्वामी जी ने यहाँ कृष्ण की प्रतिष्ठापना की, किंतु इसको वैसा नहीं करना है, सभी सारस्वतों का जुड़ीकरण करना है। इसीलिए इस भवन को कृष्ण मंदिर नहीं बोला, सारस्वत भवन बोला। स्वामी जी के सपने थे सभी सारस्वतों के एकीकरण करना, इसीलिए काम भी कर दिया था। यहाँ हम राजस्थान से बहुत आदमी आए थे 2 बस लेकर, किंतु सारस्वतों को एकीकरण करना है, किंतु कारणांतर वो जाते रहे। हम कश्मीर गए, उस समय वो भी पंडित, वो भूल गए थे सारस्वत है, वो पंडित बोलते हैं, किंतु वो सारस्वत है। ये भी है, गसट भी है, उस टाइम का राजा का सारस्वत ही बोलते थे, पंडित नहीं बोलते थे। उस समय हम गए, उस समय उनको सहाय करना हमारा आवश्यक है, वो हमारा ही भाई है। हमने उस दृष्टिकोण से वो सारस्वत फेडरेशन ट्रस्ट बना दी और 2 सम्मेलन हो गए। इसी वजह से हमारा मन में राजस्थान में भी सारस्वत है, उनकी जुड़ी करना है। इसीलिए हम पहले जोधपुर में आए, उस समय उनको बोल दिया तुम भी कब खूबी करो। उसी से हमको भी आज खुश हो रहा है। हमारा स्वामी जी का सपने
दृष्टिकोण से थोड़ा चल रहा है। और 6 महीने पहले, 6 नहीं 7 महीने पहले एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की इसलिए करते हैं, जुड़ीकरण करना। और जुड़ीकरण करना से सम्मेलन होकर 2 दिन में होकर हम जाते हैं, वो नहीं है उद्देश्य। वो सम्मेलन से क्या करना है, ग्राउंड वर्क करना है। ग्राउंड वर्क किया तो ही काम होता है। उस समय एक दृष्टि आ गई, ब्यूरोक्रेट्स हमारा समाज से भी बनाना है। क्यों? हमारा समाज को गर्व होना है। अभी वो दृष्टिकोण से आज ही एक शुभारंभ हुआ, किंतु ये शुभारंभ है। ओझा जी ने बोला, क्या बोला, हम मेडिकल डॉक्टर को ये कर दिया, वो कर दिया, वो ठीक है। हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए, क्या है, बच्चों को वो ध्यान देना है, उसके लिए काम करना है। वो ही ठीक होगा। आईएएस बनाने के लिए उतना सुलभ नहीं है, उतना पढ़ा वो नहीं है, किंतु लक भी होना चाहिए, भाग्य भी होना चाहिए। भाग्य है तो ही होता है। हमारा सिर में कोई लिखता है, वो भगवान ने लिखता है, उसको ही होता है। ऐसा कुछ नहीं, इतने पढ़े, इतने टाइम उसमें लगे, वैसा कुछ नहीं है। हमारा ज्ञान से भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। हम 8 क्लास में से ही उसका कोशिश करना शुरू करना है। उसके लिए ट्रेनिंग अभी तो हमको इतना सुलभ है, अभी ये भी इसमें ऑनलाइन ही है, उसके लिए काम करना है। हमने कर दिया, उसका अच्छा रिजल्ट है। केरल में विजयी भव 2 सेक्शन हो गए, अभी तीसरा करने का शुरू किया, वो पता नहीं हमको, किंतु एक ट्रस्ट है हमारा स्वामी जी के नाम से केरल में भी। उस वजह से हमने कोशिश कर दिया। ऐसे ही राजस्थान या दिल्ली कोई भी हो, वो बच्चों को भी ट्रेन करना है। हमारा दृष्टिकोण इतना है, आईएएस आईपीएस वो कोई भी आईएफएस, किंतु वहाँ ही नहीं रहना। वहाँ नहीं हो गया तो तहसीलदार या गवर्नमेंट जॉब में कोई भी रहना है, या स्टेट ये है, स्टेट सिविल सर्विस है, स्टेट सिविल सर्विस है, उसमें इसमें पास हो गया तो वो तहसीलदार या कुछ भी बनना तो अत्यंत सुलभ है। क्या है, वो होकर वो आईएएस बन सकते हैं। हमारा दिल में ऐसा नहीं आता, हम तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, किंतु एक तहसीलदार का क्या पोस्ट है, उनका अधिकार है, वो कोई भी प्राइवेट कंपनी का एमडी को नहीं है। उनका मर्यादा क्या मिलती है, वो प्राइवेट कंपनी का एमडी को नहीं मिलेगा। हमारा सोच सभी आईएएस नहीं हो सकता, किंतु यूपीएससी अलग अलग यूपीएससी है, उसमें भी करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उनको दृष्टि से वैसा काम कराने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सक्सेस है। हमारा समाज से 10 आदमी गवर्नमेंट सर्विस में जुड़े हुए, वो भी क्या है, वो भी राष्ट्र का सेवा करने वाले हैं, देश का सेवा करने वाले हैं। आप समझेंगे नहीं, प्राइवेट कंपनी में वो भी अलग तरह से सेवा है, किंतु ये साक्षात देश का सेवा है। किसका सेवा? देश का, राष्ट्र का सेवा। उनका पिता कौन है? देव भगवान। भूमि, ये धरती, भारत भूमि, इसका सेवा कर रहे हम। प्रेसिडेंट ये सब कुछ हो गया, किंतु किसका देश है, ऐसे हमारा मन में आना चाहिए। किंतु हम
हम आईएएस है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा आईएएस आईपीएस, सेकंड स्टेट या तहसीलदार या गवर्नमेंट जॉब। हम वो आदमी को वैसा ट्रेन करना है, क्योंकि बहुत आदमी ऐसा हो गया उनको आईएएस नहीं मिला। हमने बोला भाग्य, वो तो उसके बाद नेगेटिव होते हैं, किंतु नेगेटिव होना नहीं देना है, क्योंकि 32 इयर्स है उनका एग्जाम बनाने के लिए, 32 इयर्स, उसके बाद नहीं होते हैं जनरल कैटेगरी को। किंतु आप तो 35 तक गवर्नमेंट अलग काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा मन में उनको ट्रेन करने के समय ऐसा ज्ञान दिया तो वो नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ ये समाज में बहुत छात्र जीएसबी पढ़ रहे थे। ये हम एक अक्षरम एक स्कॉलरशिप देख रहे हैं यहाँ से अभी भी, किंतु बहुत साउथ से हमारा समाज के आदमी आ रहे थे यहाँ, वो करोल बाग वहाँ रुकते थे। हमने इनको बोला आप इतने कर रहे हैं, एक यहाँ करोल बाग में रहने के लिए इतना खर्चा होगा दिन में। हमने बोला उनको हमारा प्राउड होना चाहिए, यहाँ हम इतने रूम है और भगवान का सेवा करने का भी मौका है। हमने बोला उनको कोई भी केरल या कर्नाटक से आएंगे यहाँ रुकना का व्यवस्था करो। उन्होंने वो कर दिया और एक आईएफएस फॉरेन सर्विस में पास हो गए। तो नहीं न रहे, अभी भी है यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं आईएफएस इंडिया ऐसा। इसीलिए हमने बोला कहाँ रुकने, यहाँ ही है राजेंद्र नगर या करोल बाग में ही अधिक से इसका ट्रेनिंग सेंटर है। हमारा एक कर्तव्य है, हमारा स्वामी जी का इच्छा था इस सारस्वत भवन जुड़ने के लिए ही इसको सारस्वत भवन बना दिया था, और ये राजधानी है। इसी वजह से आज एक अच्छे काम, क्यों हम हमारा सारस्वत समाज से गर्व होने के लिए, हमारा उद्देश्य वैसा रहना है, किसी को दोषण या अन्यथा ज्ञान ऐसा मत करना है। ऐसा ज्ञान से हम करना है, क्योंकि हमको स्पर्धा नहीं चाहिए। स्पर्धे से कुछ नहीं होता, ये पॉलिटिक्स नहीं है। हमको हमारा समाज में गर्व होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य से हम करेंगे तो ठीक होगा। आज एक अच्छा शुरुआत है, और हम आज कल हमारा मूल मठ से ही आज सुबह आए थे, और यहाँ कल हमारा हरिद्वार में जा रहे हैं। अभी आपने बोला ये सारस्वत समाज हमने देखा, किंतु आप सभी लोग हमारा हरिद्वार में भी आना है, क्योंकि आपको वहाँ आएंगे तो एक बार आएंगे तो 100% 5 बार आएंगे, क्योंकि हमारा स्वामी जी ने वैसा बना दिया है। सभी है वहाँ, गंगा के किनारे में ही मठ है। कोई भी आते हैं वहाँ, वो एक बार, उसका नाम है माया नगरी। माया, हमको माया पता है माया, किंतु वहाँ जाएंगे तो वापस आएंगे, ऐसा है। और एक शांत, आप तो बोल दिया वहाँ भी आ सकते हैं आप लोग, ऐसे ही बोल दिया वहाँ जा रहे हैं, किंतु आज एक अच्छा एक शुरुआत किया है। हमारा भगवान क्या है, वेद व्यास, वो ज्ञान का अवतार है। ये भी एक ज्ञान का काम है। वो भगवान वेद व्यास और रामचंद्र और नरसिंहदेव इस ज्ञान का बढ़ा दो, और हमारा समाज में सारस्वत, इडी समाज में, सारस्वत समाज में अच्छे स्थान मिलकर हमारा देश का सेवा और हमारा देश का प्राउड और हमारा कल्चर और हमारा संस्कृति और ब्राह्मण का भी संस्कृति ये है, वो अधिक से जुड़े, और हम सबको भगवान मंगल करे, ऐसा प्रार्थना पुनः व्यासरूपित नरसिंह और कृष्ण परमात्मा से और हमारा स्वामी जी के चरणों में स्मरण करके हम स्टॉप कर रहे हैं। हमको परम आदरणीय स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए, बड़े भाई ओझा साहब जोशी जी, हम दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सारस्वत समाज के लोग, जो प्रेरणा हमें जोधपुर से मिली और जितना अच्छा कार्यक्रम जोधपुर वालों ने किया, उसके लिए इंद्रप्रस्थ सारस्वत समाज यहाँ जोशी जी का, ओझा जी का और जोधपुर वासियों का सबका सम्मान करना चाहेगी। तो मैं अपनी संस्था के प्रधान और संरक्षक श्री श्रीधर जी
अवस्थी जी से निवेदन करूंगा कि पहले घनश्याम जी ओझा का स्वागत करें, दोनों घनश्याम जी भाई साहब का। गुरुपदगामी गुरुवर ध्यानी श्री संयमीन्द्रो वर गुरु स्वामी। 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 संयमीन्द्र गुरु पाहि मां, संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां, संयमीन्द्र गुरु पाहि मां, संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां। व्यासाश्रम वर गंगा तट स्थित हरि गुरु सेवक निज जन रक्षक। व्यासाश्रम वर गंगा तट स्थित हरि गुरु सेवक निज जन रक्षक। जप तप ध्यानं गुरु सहवासं बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं। जप तप ध्यानं गुरु सहवासं बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं। बहुजनि लब्धं श्री गुरु प्रेमं। संयमीन्द्र गुरु पाहि मां, संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां, संयमीन्द्र गुरु पाहि मां, संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां। भवभयहरणं सद्गुरु स्मरणं कुरुते अनिशं त्वरितं सुखदं। भवभयहरणं सद्गुरु स्मरणं कुरुते अनिशं त्वरितं सुखदं। कीर्तन प्रेमी सुशील मौनी ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्र मानी। कीर्तन प्रेमी सुशील मौनी ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्र मानी। ज्ञानी श्री गुरु सुधीन्द्र मानी। श्री सुधीन्द्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे। संयमेन मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान्। श्री सुधीन्द्र गुरु संप्रीतान् संयमीन्द्रान् सदा भजे। संयमेन मुदा भक्त्या श्रीश सद्गुरु सेवकान्। व्यासराज
राघव नरसिंह पूजा श्री सद्गुरु वंदना तत्परान्वयी सद्बोधदात्रान् सद्भावपूर्णान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् श्रीमध्वशास्त्रं नितबोधयन्तान् व्यासाश्रमे हरिद्वारे सप्तस्रोत विराजिते गंगाया पश्चिमे तीरे सुधीन्द्र संभवान् संयमीन्द्रान् भजे नित्यं गुरु भक्ति प्रदान